Okay, no issues. Uh, any question from the previous session that we have discussed and we talked about? No questions. ठीक है, चलें आज स्टार्ट करने लगे हम। बल्कि पिछली क्लास में थोड़ा सा इसको पढ़ना शुरू किया था अबाउट द कैप्सूल्स एंड slime layer. Actually, in this chapter, we have to focus on certain structures of the microorganisms. सबसे पहले हमने माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स का पढ़ा है सॉरी उसके बाद हमने स्टेनिंग टेक्निक्स का पढ़ा है. नाउ वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. और उसमें सबसे पहले सेलुलर मेम्ब्रेन, फिर सेलुलर वॉल एट्सेट्रा, जो 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 बड़े बेसिक किस्म के कंपोनेंट्स हैं सेल के स्ट्रक्चर वाइज, उनकी डिस्कशन हुई है. And now, today we are going to focus on the capsules and slime layer. Capsules and slime layer, they are actually the gel-like layers, gel-like structures that are present outside to the cellular envelope or cell wall के बाहर present हैं. Normally, the capsules and they are moist and glistening in appearance, moist nature और glistening in appearance है. कैप्सूल और स्लाइम दोनों सिमिलर हैं. दोनों में अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो that is only the distinct shape. The capsule है, they are of the distinct shape and they are gelatinous. Slime layer जो है, this is not a distinct shape. The composition is almost same, but the slime layer that is present in an irregular manner and that is diffused. For example, if there is a bacteria और उसके around कोई gelatinous material है but वो एक specific shape में है, तो that will be termed as a capsule. और अगर कोई ऐसा मटेरियल मौजूद है जो कि एक स्पेसिफिक शेप में नहीं है, वो इरेगुलर और डिफ्यूज फॉर्म में है, दैट वुड बी टर्म्ड एज अ स्लाइम लेयर. कैप्सूल की और स्लाइम लेयर की जो कंपोजिशन है, दैट इज एक्चुअली सिमिलर एंड मोस्ट ऑफ द capsules they share a similar composition, but कुछ स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट हुआ करते हैं. हमारे पास कुछ स्पीशीज़ जो हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की कंपोजिशन हो सकती है और हम इस कंपोजिशन की बेस पे ही हम डिफरेंट स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. बट मोस्टली most of the capsules, they are made up of glycocalyx. And what is that glycocalyx? This is actually a polysaccharide, and in that sense you can say that around the cellular wall, uh, around the cell envelope, the capsule, that is a sugar shell, because that is made up of polysaccharide and that is called glycocalyx. So that's why it may be termed as a sugar shell that is surrounding the microorganisms. मोस्टली तो ये पॉलीसेकेराइड से मिलके बना हुआ है, बट स्टिल देयर आर अदर कंपोजिशंस. कुछ पॉलीपेप्टाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं. कुछ कैप्सूल जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स एंड नॉर्मली इन पॉलीपेप्टाइड्स में ज़्यादा अमाइनो एसिड्स मौजूद नहीं होते. only one or two types of amino acid, they form the polypeptide layer of the capsules. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड्स, ये अमाइनो एसिड डी आइसोमेरिक फॉर्म से होते हैं. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. यू गाइस आर फेमिलियर विद द डी स्टेरियोआइसोमेरिक फॉर्म एंड द एल स्टेरियोआइसोमेरिक फॉर्म, एंड देयर आई टोल्ड यू नेचर में कॉमनली एल स्टेरियोआइसिक फॉर्म्स मौजूद होती हैं. डी स्टेरियोआइसोमेरिक फॉर्म जो है, दे आर वेरी रेयर इन द नेचर, और उसके हमें एक फॉर्म मिलते, डी स्टेरियोआइसोमेरिक फॉर्म में अमाइनो एसिड जो हैं ये हमें मिलते हैं कैप्सूल्स एंड स्लाइम लेयर की कंपोजिशन में. ठीक है, so this is about the composition of the capsules and slime. Now, if we extend this topic, and the question is that what is the function of the capsule, what it does. Function इसमें हमारे पास ये है कि both of them, they are responsible to adhere the microorganism with different places. For example, when we talked about biofilms in the previous session, and there we discussed that biofilm में होता क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरिया multiple species से belong करते हैं. They adhere with one and each other, and they grow in adherence, or
उससे पहले भी हमने पढ़ा कि बायोफिल्म जब बनना स्टार्ट होती है तो बैक्टीरिया किसी भी सरफेस के साथ अटैच करते हैं पहले. Actually, this attachment that is dependent upon the capsules and the slime layer. तो इसका क्या मतलब होगा? It means that in the biofilm formations, capsule and slime layer they play their role. मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ कि slime layer and capsule it plays it's they play their role in the formation of the biofilm. इसके अलावा जो dental plaques हैं, dental plaques पे formation में भी capsules a role play करते हैं, because here again microorganisms they use to attach with the dental surfaces as well as they use to form the biofilms. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है हमारे पास. दिस एग्जाम्पल इज ऑफ स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस. एंड द स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट जो है ये इंटरेस्टिंगली इट यूजेस द सुक्रोज टू सिंथेसाइज द कैप्सूल. एंड अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि जो कैप्सूल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स. तो हम उसी बात को एक्सटेंड कर रहे हैं कि जो स्टेप्टोकोकस है, स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस दैट यूज सुक्रोज इट सिंथेसाइजेस द कैप्सूल. और ये जो कैप्सूल सिंथेसिस है दिस विल अलाउ द स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट टू अडहियर टू द सर्विसेज ऑफ द टूथ. दांतों के सर्विसेज में स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट अटैच करेगा ड्यू टू द formation of the capsule. Now, when the Staphylococcus mutant that would be attached with the surface of the tooth, उसके साथ दूसरे microorganism, the other bacteria, they would come, they would adhere, और यहाँ पे एक biofilm create होना start हो जाएगी. और फिर होगा क्या कि यहाँ पे multiple bacteria जो हैं they would start growing and they would be producing lactic acid. This lactic acid production is actually the reason to decay the tooth surfaces. Tooth surfaces की decay में involved है. ठीक है. So this is an example how capsules and slime layer they are involved in the successful growth of the microorganism. Definitely microorganism की growth को successful कर रहे हैं ये दोनों, जिसके रिजल्ट में जो होस्ट है, जैसे ह्यूमन के केस में हम देखें तो टूथ की जो अपर सर्फेस है उसकी डिके हो रही है बाय द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. और इस सब में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे ज़्यादा वो हमारे पास है स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस के कैप्सूल की. तो कैप्सूल की वजह से एडहेरेंस इंक्रीज हुई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू ग्रो देयर. एक और एग्जांपल हमारे पास हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कैप्सूल. उसमें डिस्कस करें अभी करने लगे हैं कि देयर इज एन ऑर्गेनिज्म, आप इससे फेमिलियर होंगे. देयर इज अ कॉमन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नेम्ड एज स्टेप्टोकोकस निमोनी. दिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया. बैक्टीरियल निमोनिया कॉज करता है स्टेप्टोकोकस निमोनी. और नॉर्मली ये करता क्या, ये ग्रो कैसे करता है, या ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. मैं अगर आपको यहाँ पे मजीद इसको ड्रॉ कर सकूँ, टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. एक फॉर्म को हम कहते हैं कैप्सुलेटेड फॉर्म, और जो दूसरी फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं unencapsulated फॉर्म, यानी कि नो कैप्सूल हियर एंड हियर द कैप्सूल अराउंड द स्टेप्टोकोकस की टू फॉर्म्स होती हैं. कैप्सुलेटेड फॉर्म में ये क्या करता है कि कैप्सुलेटेड फॉर्म में इट कैन डॉज द ह्यूमन इनेट डिफेंस सिस्टम. ह्यूमन इनेट्स डिफेंस सिस्टम अगर कैप्सुलेटेड है स्टेप्टोकोकस तो ह्यूमन इनेट डिफेंस सिस्टम इसको किल नहीं कर सकेगा. मैं लिख देता हूँ नो किलिंग. अगर कैप्सूल नहीं है तो इनेट डिफेंस सिस्टम क्या करेगा कि दैट वुड किल द स्ट्रेन. तो अब इससे मतलब क्या हुआ कि देर इज if there is the capsule around the streptococcus, तो उस केस में क्या होगा कि इम्यून सिस्टम किल नहीं कर पाएगा और पेशेंट को निमोनिया हो जाएगा. अगर ऑर्गेनिज्म के अराउंड कैप्सूल नहीं है तो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम इसको किल कर देगा और पेशेंट को निमोनिया नहीं होगा. So इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेप्टोकोकस, इसका मतलब है कि स्लाइम और कैप्सूल जो है इनके हमारे पास डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं. इसका रोल हमने अभी पढ़ा है, इसका हमने रोल पढ़ा है कि जनाब हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में इस्तेमाल, बैक्टीरिया इसको अपनी सक्सेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है. फॉर एग्जांपल इसको यूज़ कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड, फॉर द सक्सेसफुल अटैचमेंट एंड फॉर द सक्सेसफुल ग्रोथ. ठीक है, कैप्सूल्स.
यहाँ तक जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है व्हाट इज द रोल ऑफ द कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, वगैरह वगैरह। किसी ने कुछ पूछना हो यहाँ तक तो प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नो सर। ये सारे क्वेश्चन सर यहाँ पर। सर ये जो आपने डेंटल प्लेक्स की या फिर जो सर्विसेज ऑफ डेंटल की डिजीज है, ये तकरीबन राउंडली एवरी पर्सन में होती है या फिर ये जो पेशेंट होते हैं टूथ के उन पर होती है? No, this is not normally observed in every person. This could be observed in a person in which Streptococcus mutans have option to grow. यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी के बैड हाइजीनिक हैबिट्स हैं और वहाँ पे स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस का इन्फेक्शन हो गया है, स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट ग्रो कर गया है, और उस ग्रोथ के रिजल्ट में दूसरा बैक्टीरिया भी इसके साथ आके एडहेयर करके ग्रो करना शुरू करेगा, देन लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन और टूथ डिके का इशू होगा। और हमें देखते हैं कि हमें बहुत कम इंडिविजुअल्स में नजर आता है, जिसको हम कहते हैं कि बड़ी कॉमन जुबान में कहते हैं दांत को कीड़ा लगा हुआ समथिंग समथिंग, और टूथ सरफेस जो है वो डिके कर गई होती है, और उसके उसके पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, एवरी लेकिन पर्सन सर में वो नहीं है। सर वो डिकेइंग के साथ जो इधर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो रही है, तो ये तो पिंचिंग करेगी माउथ पर, तो वो तो किसी को फील नहीं होती तकरीबन। अच्छा, पिंचिंग ऐसा नहीं है, ये लैक्टिक एसिड जो इसकी प्रोडक्शन हो रही है ये कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। वैसे भी लैक्टिक एसिड जो है दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पिंच। लैक्टिक एसिड हम बहुत सारी फूड्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, इवन लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन द योगर्ट एज वेल। तो ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है हमारे पास, इतनी पीएच ड्रॉप नहीं है कि ये पिंचिंग हो जाए, बट स्टिल क्योंकि ये टूथ की सरफेस के बिल्कुल साथ प्रोड्यूस हो रहा है, एंड डेफिनेटली दैट इज एन एसिड, सो दैट वुड बी डिकेइंग द टूथ ग्रेजुअली। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। that is not too strong as you can say that that is the sulfuric acid is strong, or the HCl, that is not too strong, and that is very common ingredient of different kind of diets, natural diets. ठीक है सर। आगे चलते हैं जी हम, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अदर पैरामीटर एंड सम अदर स्ट्रक्चर्स। अभी तक जो हमने पढ़े हैं दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच वर रिक्वायर्ड फॉर द बेसिक ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए थे बैक्टीरिया को। मिसाल के तौर पे सेलुलर मेम्ब्रेन है, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, सेलुलर वॉल है, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बगैर बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रॉपरली मुमकिन नहीं है। बट अभी जो हम पढ़ने लगे हैं दे आर नॉट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्रोथ, दे आर they are the appendages. These are the structures which facilitate the growth of the microorganism. अगर ये होंगे तो ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बड़ी फैसिलिटेटेड है, अगर ये नहीं है तो ग्रोथ जो है वो उस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। दीज आर नॉट बेसिक वन। अच्छा, अब हम इनमें अगर देखते हैं तो हमें फिलामेंटस अपेंडेजेस में, इन प्रोटीन अपेंडेजेस में 2 से 3 टाइप्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्लैजिला है, फ्लैजिला के साथ ही पिलाए हैं। फ्लैजिला के बारे में आप काफ़ी मेरा ख्याल है फेमिलियर हैं कि फ्लैजिला जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया एंड दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। बट यहाँ पे हम कुछ फ्लैजिला की केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री पे बात करेंगे, और थोड़ा सा ये देखेंगे कि फ्लैजिला किस तरह से मूव करके बैक्टीरिया को मूव करवाते हैं। तो flagella जो है actually whenever we talk about a flagella we can say that that is a thread-like structure that is extended out of the cell, and that is made up of a protein named flagellin, and the flagella जो है that moves, that spin like a propeller, and that used to move the bacteria from one location to the other location. And comparatively we can also say that the flagella हैं they use the energy of the proton motive force, and it is just like that. For example, if a ship that is driven through water, एक शिप जिस तरह से पानी में ड्राइव करते हैं बिल्कुल उसी तरह से फ्लैजिला जो है दे स्पिन लाइक अ प्रोपेलर एंड दे मूव the bacteria from one location to the other. And for this spinning, flagella use the energy. Definitely they would be requiring the energy, and that energy is coming from, and they're getting the energy from the proton motive force. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो हमारे पास फ्लैजिला हैं, फ्लैजिला की स्पीड क्या हो सकती है, रोटेशन की स्पीड क्या है। तो कीप इन माइंड फ्लैजिला जो है ये रेवोल्यूट करते हैं
100,000 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में 1 लाख टाइम रोटेट करते हैं, ठीक है। और इस रोटेशन के रिजल्ट में जो बैक्टीरिया की मूवमेंट है, ये मूवमेंट तकरीबन बहुत बहुत फास्ट मूवमेंट है बैक्टीरिया की। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक मैं बैक्टीरिया ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, और अगर इसका बॉडी साइज मिसाल के तौर पे 1 सेंटीमीटर है अगर, तो 1 मिनट में बैक्टीरिया अपनी बॉडी साइज का 20 टाइम्स मूव करता है। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर था, तो ये 1 मिनट में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस तय कर सकता है बैक्टीरिया बाय द मूवमेंट ऑफ दीज फ्लैजेला। तो ये बहुत तेज स्पीड है। इस स्पीड को अगर हम ह्यूमन के साथ कंपेयर करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक 6 फुट का ह्यूमन है, तो वो 1 घंटे के अंदर 82 माइल्स पर 82 माइल्स की स्पीड जो है वो स्पीड से रनिंग करे, तो जाके ये स्पीड बैक्टीरिया की स्पीड के इक्विवेलेंट होती है। कैन यू टेल मी ह्यूमन की नॉर्मल स्पीड क्या है? ह्यूमन की नॉर्मल स्पीड क्या है? एनीवन? भाई हम अब रनिंग करते होंगे या चलते होंगे, तो डू यू हैव एनी आइडिया कि नॉर्मल स्पीड क्या है ह्यूमन की? नो आइडिया? सर एनीवन? 60 स्टेप्स पर मिनट। कितना? 60 स्टेप्स। Steps? No. Normally, it is considered that this is 6 kilometers per hour, maybe per hour, HOUR, ठीक है। एंड 6 किलोमीटर्स। तो अगर हम ये बैक्टीरिया की इतनी फास्ट स्पीड है कि दे कैन मूव 20 टाइम्स टू देयर बॉडी साइज इन अ मिनट। तो इस हिसाब से अगर ह्यूमन के साथ हम इसको कंपेयर करें, तो इसका मतलब होगा कि अगर एक 6 फुट का ह्यूमन है, इट कैन रन 82 माइल्स पर आवर। दिस इज वेरी हाई स्पीड। और इस स्पीड से बैक्टीरिया मूव करते हैं, एंड ऑल दिस रिस्पॉन्सिबल इज द फ्लैजेला। इसके साथ साथ फ्लैजेला जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, फ्लैजेला दे आर इन्वॉल्व इन द movement of the bacteria, and they are responsible to travel the bacteria from one position to the other position. Bacteria are not only, flagella are not only involved in the movement, but flagella, they're also involved in the infection spread. They help the bacteria to cause the infection, ठीक है। कैसे? इसकी एक एग्जांपल पढ़ते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के केस में। यू आर फेमिलियर विद इट, दैट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दैट इज द बैक्टीरिया दैट कॉज द स्टमक अल्सर्स। अब चूंकि स्टमक जो लेयर है, स्टमक लेयर में इंटरनल साइड पे एक विस्कस म्यूकस लेयर होती है, इंटरनल साइड पे विस्कस म्यूकस जेल होती है। तो जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का फ्लैचला है, ये विस्कस म्यूकस जेल को इंट्रैप करता है, और ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को इनेबल करता है कि वो म्यूकस जेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। Whenever the Helicobacter pylori will penetrate into the viscous mucus gel, तो फिर क्या करेगा ये? This will reach to the stomach epithelium, and that would enable the that will enable the Helicobacter pylori to grow there, and Helicobacter pylori will cause the infection, जिसको हम कहेंगे stomach ulcer। तो फ्लैजेला का रोल यहाँ पे यह है कि विस्कस म्यूकस जेल के अंदर पेनिट्रेट करवाता है सेल को, और this is the reason that this is involved in the infection spread, not only in the movement of the bacteria। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी? आप इसको एक दफा देख लें, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज।
ओके जी, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? नो Should we सर। move? चलें आगे बात करते हैं थोड़ी सी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला। सवाल यहाँ पे ये है कि फ्लैजेला स्ट्रक्चर वाइज किस तरह से है और इसके स्ट्रक्चरल पार्ट्स क्या हैं। बड़े ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इन डिटेल्स में नहीं जा रहे, बट स्टिल हियर बिकॉज योर सब्जेक्ट इज अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी, सो आई वांट हियर टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ अबाउट द थिंग्स। अच्छा, जब हम फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्लैजेला स्ट्रक्चर जो है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज द फिलामेंट, दिस वन, उसके साथ साथ हुक एंड द बेसल बॉडी। ठीक है, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जा सकता है। लेट मी शो यू एन इमेज हियर, दिस वन। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, फॉर एग्जांपल हियर। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, दिस इज द पेरिप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर फ्लैजेला एम्बेडेड है और बड़े खूबसूरती से एम्बेडेड है। हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज द बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है दैट इज इंट्रैप्ड इनटू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल, इनटू द पेप्टिडोग्लाइकन। एक डिस्क जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर है, एक डिस्क यहाँ पे सेल वॉल के अंदर है, और 2 डिस्क जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर है। इसके बाद above portion, ये जो curvy portion है, this one, this curvy portion, this is called hook. And after the hook, there is a portion, there is a thread-like portion, this is called the filament. और ये जो thread-like portion, that is made up of flagellin. और ये जो flagellin है, they are identical in different kinds of flagella. तो अभी तक हमने जो 3 इसके parts पढ़े हैं, filament, hook, and the basal body. Basal body is there to anchor the flagella into the cellular envelope of the bacteria. Hook is the responsible to attach the filament with the basal body. Or this is the general structure. अब flagella, depending upon the number of flagella and their position, we can categorize the bacteria into different classes. अब इन classes से familiar हैं, for example atrichus, monotrichus, lophotrichus, amphitrichus, peritrichus वगैरह वगैरह. So these are different classes of the bacteria that we can categorize the bacteria into it, depending upon or based upon the position and the number of flagella. मुझे इन classes की डिटेल बताने की ज़रूरत है कि atrichus क्या है, lophotrichus क्या है? Do you think? नो सर। I think you guys are familiar with it. Okay, so now we move towards the flagellar movement. एक बात याद रखिएगा, flagella की वजह से जो bacterial movement है उसको हम कहते हैं taxis. Taxis, ठीक है? This is the movement of the bacteria due to the flagella. अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव वेसल, इस वेसल के अंदर अगर हमारे पास ये बैक्टीरिया है एक कोने में और यहाँ पे कोई केमिकल है, कोई भी केमिकल, ये न्यूट्रिएंट हो सकता है, ये न्यूट्रिएंट हो सकता है या ये कोई इनहिबिटर हो सकता है, इनहिबिटर, ठीक है? इफ दिस इज अ न्यूट्रिएंट, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट, और हम इसको न्यूट्रिएंट को कहेंगे दिस इज द एक्टिंग एज ए अट्रैक्टेंट. If this chemical that is inhibitor, तो बैक्टीरिया इससे रिपेल होगा एंड बैक्टीरिया विल मूव अवे फ्रॉम दिस केमिकल, और इसको हम कहेंगे दिस इज एक्टिंग लाइक अ रिपेलेंट. अब बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है, ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे ये केमिकल एज ए न्यूट्रिएंट है तो बैक्टीरिया विल मूव टूवर्ड्स इट, हम इसको कहेंगे दिस इज द पॉजिटिव कीमोटैक्सिस. इफ दिस इज द इनहिबिटर एंड बैक्टीरिया इज मूविंग अवे, हम इसको कहेंगे दिस इज द नेगेटिव कीमोटैक्सिस. ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं रनिंग और दूसरी को हम कहते हैं टम्बलिंग मूवमेंट. रनिंग मूवमेंट एंड टम्बलिंग मूवमेंट, रनिंग एंड टम्बलिंग. अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जाम्पल there is a bacteria here. If I draw the bacteria like here, and it has to move from this starting point to the end point here.
दिस इज द एंड पॉइंट। तो बैक्टीरिया, इस मूवमेंट को हम कहेंगे दिस इज द रनिंग मूवमेंट, रनिंग। अब होता क्या है कि अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि जो बैक्टीरिया के फ्लैजेला हैं दे स्पिन। अब ये अगर बैक्टीरिया के फ्लैजेला काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में स्पिन करेंगे तो बैक्टीरिया रनिंग मूवमेंट शो करेगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। बट आफ्टर, याद रखिएगा, आफ्टर अ रनिंग सेशन, एक रनिंग मूवमेंट के बाद बैक्टीरिया के फ्लैजेला रुक जाते हैं, स्टॉप कर जाते हैं। अब इस स्टॉपिंग के दौरान बैक्टीरिया अपनी पोजीशन रोल करता है। मिसाल के तौर पे अगर बैक्टीरिया की पोजीशन ये थी 1 और 2, तो एक रनिंग के बाद बैक्टीरिया रुकेगा और रोल करेगा। रोल करने के बाद उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। हो सकता है उसकी पोजीशन इस तरह से हो जाए 2 and 1, रोल, पोजीशन चेंज हो जाएगी। नाउ बैक्टीरिया दैट विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। तो दिस पोजीशन जिसमें दिस मूवमेंट जिसमें बैक्टीरिया ने अपनी पोजीशन चेंज की है, रोलिंग की है, इसको हम कहते हैं टम्बलिंग मूवमेंट, टम्बलिंग, ठीक है, टम्बलिंग मूवमेंट। अब मैं आपको एक आगे स्ट्रक्चर दिखाऊं, इसकी इमेज दिखाऊं, हियर दिस वन। इस केस में अगर आप देख सकें तो इस केस में हो क्या रहा है, लेट मी क्लियर ऑल दिस ड्राइंग टू मेक इट विजिबल फॉर यू, दिस वन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें दो इमेजेस हैं, दिस वन इज द वन और ये सेकंड है। अब अगर सेकंड वाली में देखें, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट एंड बैक्टीरिया हैज टू मूव फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, बिल्कुल स्ट्रेट मूव नहीं करता। अब इस पोर्शन को हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया। ये जो ग्रीन लाइंस हैं दे आर शोइंग द रनिंग मूवमेंट और ये जो रेड डॉट्स हैं दे आर शोइंग द टम्बलिंग मूवमेंट। अब बैक्टीरिया ने एक रनिंग पूरी मुकम्मल की है, एक फेज ए। उसके बाद बैक्टीरिया ने टम्बलिंग मूवमेंट शो किया है। फ्लैजेला ने मूवमेंट स्टॉप कर दी, बैक्टीरिया ने अपनी पोजीशन चेंज की। नाउ ये इधर को मूव किया, दिस इज द फेज बी ऑफ द रनिंग फेज। फिर टम्बलिंग मूवमेंट हुई, फिर फेज सी, फिर टम्बलिंग मूवमेंट, फिर फेज सी। इसी तरह से बैक्टीरिया टम्बल करते हुए अल्टीमेटली दैट इज मूविंग टुवर्ड द एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट यहाँ पे हो सकता है कोई न्यूट्रिएंट पड़ा हुआ हो जिसकी तरफ बैक्टीरिया मूव कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम 1 में देखें, अगर आप 1 और 2 को आपस में कंपेयर करें तो 2 के अंदर टम्बलिंग मूवमेंट कम है, रनिंग मूवमेंट ज़्यादा है। 1 के अंदर टम्बलिंग मूवमेंट ज़्यादा है और रनिंग मूवमेंट कम है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि बैक्टीरिया जब किसी अट्रैक्टेंट की तरफ मूव कर रहा होता है, अट्रैक्टेंट की तरफ मूव कर रहा होता है तो इट शोज लेस टम्बलिंग मूवमेंट। जब बैक्टीरिया किसी रिपेलेंट की तरफ मूव कर रहा होता है तो इट शोज हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द टम्बलिंग मूवमेंट, ठीक है, टम्बलिंग मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, इसने इतना सा डिस्टेंस तय करना है। अब एंड पॉइंट पे हो सकता है कोई रिपेलेंट पड़ा हुआ हो, रिपेलेंट, तो बैक्टीरिया जो है ये बहुत ज़्यादा टम्बलिंग मूवमेंट शो कर रहा है कि रिपेलेंट की तरफ ना पहुंचना पड़े। बट इन केस ऑफ हियर this is attractant here at the end point and bacteria is showing more running movement as compared to the tumbling movement, and behind all this running and tumbling the flagella is responsible, flagella is present. So this is actually the movement that has been categorized into two phases. One is the running, number two is the tumbling. और टम्बलिंग मूवमेंट में बैक्टीरिया अपनी डायरेक्शन को कम्प्लीटली रोटेट करता है, ओरिएंटेशन को चेंज करता है, और रनिंग में ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करता है, रन करता है। दिस ऑल कॉल्ड टैक्सिस मूवमेंट। और इसमें हमने पढ़ा है अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट का ऑप्शन भी। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई बात कंफ्यूज कर रही हो आप लोगों को? सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर बैक्टीरिया अट्रैक्टेंट की तरफ जा रही है सर, फिर वो ये टम्बलिंग मोमेंट क्यों शो करती है? हाँ, अट्रैक्टेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रिजवान होप यहाँ पे ये रहा है कि चूंकि बैक्टीरियल फ्लैजेला है ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो बैक्टीरिया मूव करता है। अब आफ्टर अ फ्यू टाइम फ्लैजेला जो है इनकी मूवमेंट रुक जाती है। मूवमेंट जब रुक जाती है फ्लैजेला की तो मीनवाइल बैक्टीरिया क्या करता है कि अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है। उसके बाद फिर मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो अब जिस ओरिएंटेशन में बैक्टीरिया था उधर को स्टार्ट हो जाएगी, फिर रुक जाएगी, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी।
तो इट्स द पैटर्न, क्योंकि जो फ्लैजला है वो कंटिन्यूसली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दे रिक्वायर द एनर्जी, प्रोटॉन मोटिव फोर्स एनर्जी आती है, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकती, तो जो फ्लैजला है दे वुड बी चेंजिंग देयर पैटर्न। गॉट इट? सर तो रुकती क्यों नहीं है? रुकती क्यों नहीं मतलब? रुक तो रही है। रुक जा मतलब रुक जाए फिर सीधा जाए सर। अच्छा अच्छा, वो रुक जाती है बेसिकली, लेकिन मीनवाइल जो बैक्टीरिया है जो कंट्रैक्टाइल मूवमेंट की वजह से अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है। तो अब फ्लैजला जो है वो तब रुके हुए थे, लेकिन बैक्टीरिया ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली कंट्रैक्टाइल मूवमेंट की वजह से। उसके बाद फ्लैजला फिर से चलेंगे, अब बैक्टीरिया का अब जिस तरफ भी मुंह है फ्लैजला उधर को मूव करवा देंगे, फिर फ्लैजला रुक जाएंगे, और उसके बाद अगेन देयर वुड बी एन ओरिएंटेशन चेंज। तो फिर ये इस तरह से जिग जैग मैनर में बैक्टीरिया अल्टीमेटली मूव करता रहेगा। ओके, ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जिस फॉर एग्जांपल जिस तरह मतलब हमें जब इंसान ह्यूमन बींग्स को वही अपना न्यूट्रिएंट वगैरह नजर आता है तो ये ब्रेन मैसेज देता है कि जी ये न्यूट्रिएंट है, ये आप खा लें। तो सर ये एज सच कोई बैक्टीरिया के पास तो ब्रेन नहीं होता, तो कोई ऐसा कौन सा स्पेशल इनके अंदर सिस्टम होता है जिसकी वजह से इनको पता चलता है भाई ये न्यूट्रिएंट है मेरा, मैंने या इस यू तरफ राइट, जाना या है यू या इधर राइट। से दूर जाना है? एक्चुअली दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, और मेरा ख्याल है अब हमारे आज के लेक्चर के डोमेन से बाहर चला जाएगा। आई विल ट्राई कि अगर इस चैप्टर के बाद हमारे पास कोई और ऐसा चैप्टर ना हुआ ज़रूरी, तो हम ये वाला स्टार्ट करेंगे कि हाउ बैक्टीरियल फ्लैजेला और द बैक्टीरियल सेल दैट डिटेक्ट्स द स्टिमुलस ऑफ द केमिकल्स, और उन स्टिमुलस के अराउंड फिर एक्शन लेना। तो ये एक अलग स्टोरी है कि किस तरह से फ्लैजेला या बैक्टीरियल सेल डिफरेंट स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, उनके अराउंड उनके लिए प्रोसेसिंग होती है, उसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं, और उसमें अगर रिसेप्टर्स का रोल है तो कौन से रिसेप्टर्स हैं। तो ये फिर हम एक अलग स्टोरी डिस्कस करेंगे। वी कैन गो फॉर दिस चैप्टर एज वेल। ओके, ओके सर। गुड। बाय द वे दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? नो क्वेश्चन, ओके। चलें, so if we move next, we can categorize this Texas movement into different categories on the basis of stimulus. For example, phototaxis, aerotaxis, magnetotaxis, and thermotaxis. Phototaxis में जो stimulus है ये light है। एक हमने अभी पीछे पढ़ा है chemotaxis, उसमें chemical है। एरोटैक्सिस में ऑक्सीजन है। मैग्नीटोटैक्सिस के अंदर हमारे पास अर्थ का मैग्नेटिक पुल है, मैग्नेटिक पुल। थर्मोटैक्सिस में टेम्परेचर है, टुवर्ड्स द टेम्परेचर एंड टू अवे फ्रॉम द हाई टेम्परेचर। अब अगर इसमें मैं एग्जांपल दूं, जो ऑक्सीजन के केस में हमने पढ़े थे एनारोबिक एंड एरोबिक, तो एरोबिक जो होंगे दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स द फेज वेयर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो एरोबिक जो है वो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस शो करवाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और जो एनारोबिक हैं दे विल शो द नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्टिमुलस की बेसिस पे हम फ्लैजुलर मूवमेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में अगर कैटेगराइज कर सकें तो ये उसकी डिटेल है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज अ पिलाई। अच्छा, आप लोगों के पास नोट्स मौजूद है अभी फिलहाल अबाउट द चैप्टर 3 के जो हमारे पास चैप्टर है वो है अभी? Yes, sir. हाँ, अगर आप उसको Yes, चैप्टर को एक sir. दफ़ा खोल लें तो उसमें आप ये फ्लैजेला वाला पोर्शन जो है मैं सोच रहा हूँ इफ़ यू कैन गो थ्रू इट, एंड इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन आप उसको क्लियर कर लें जस्ट 5 मिनट्स में, उसको एक दफ़ा बर्ड्स आई व्यू दे दें, उसको गो थ्रू हो जाए, बिकॉज मुझे लगता है कि मे बी उसके अंदर कोई अगर ऐसा टॉपिक ना हो कि जो आपकी समझ में ना आए। ठीक है, जस्ट जस्ट 5 मिनट्स प्लीज़।
Okay, is there any question? Hello, do you hear me? Yes, sir. Good. Is there any question? नो सर. No, sir. Good. पढ़ भी रहे हैं कि बस बैठे हुए हैं और चलें आगे मूव करते हैं. So this is the next topic that is about the pili, and we can have an idea about other functions of the bacteria by studying these appendages. और इसमें हमने चूँकि सबसे पहले जो है फोकस करने की कोशिश की है अबाउट द फ्लैजिला. फ्लैजिला के बारे में बहुत ब्रीफली देखा है हमने कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फ्लैजिला अदर देन द मूवमेंट एंड हाउ फ्लैजिला मूव्स द बैक्टीरिया फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन एटसेट्रा. जो पिलाई हैं they are actually similar structures, but they are shorter and thinner than the flagella. Keep in mind they are not exactly like they are not extended like the flagella. They are shorter as well as they are thinner. अच्छा, अब उसमें स्ट्रक्चर जो कि दोनों का थोड़ा सा सिमिलर है, बट फ्लैजिला जो है उसके अंदर जो प्रोटीन थी, दिस प्रोटीन वाज फ्लैजिलन. लेकिन पिलाई जो है इसके अंदर प्रोटीन जो है दिस इज द पिलाइन. नॉर्मली प्रोटीन इज डिफरेंट इन केस ऑफ द पिलाई. ओके हफ्सा, दैट वाज एक्चुअली द टम्बलिंग मूवमेंट जिसके बारे में उसने वर्ड यूज किया. इसको आई विल एक्सप्लेन इन लेटर. अच्छा, पिलाई जो है दे प्ले द डिफरेंट रोल. अभी चूंकि फ्लैजिला के अंदर हम पढ़ के आए हैं, फ्लैजिला जो थे दे वर द लॉन्ग थ्रेड्स, ये मूवमेंट करवाते थे बैक्टीरिया के. जो पिलाई हैं दे आर नॉट द लॉन्ग, दे आर शॉर्टर, but their function is also different. Most of the pili they are involved in the attachment of of the cell to the specific surfaces. अब उसमें कुछ पिलाई जो है उनको हम नाम दे देते हैं फेम्ब्रे का, फेम्ब्रे. These are the pili specifically designed pili which are responsible to attach the bacteria with some specific surfaces. इसके अलावा एक और मज़े की बात यह है कि पिलाई की टिप पे एक प्रोटीन होती है. दैट प्रोटीन इज नेम्ड एज एडहेजन प्रोटीन. जो एडहेजन प्रोटीन है दिस इज इन्वॉल्व इन द एडहेरेंस ऑफ मल्टीपल बैक्टीरिया विद सम सर्फेसेस. अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ बड़ी रफ से ड्राइंग करने की कोशिश करूँ, हियर दिस इज द बैक्टीरिया, इसकी सरफेस पे पिलाई है और पिलाई की टिप पे यहाँ पे adhesion protein है. So this protein would enable the bacteria to attach with the surface, any surface. इसकी बड़ी हमारे पास common example है. Normally हम E. coli के केस में देखते हैं whenever a human is infected with the E. coli और human के अंदर जो symptoms हैं वो watery diarrhea symptoms होती हैं, watery diarrhea symptoms. This is caused by E. coli. और कौन से E. coli? Which have the पिलाई और उनके ऊपर एडहेजन प्रोटीन्स होती है. तो नॉर्मली होता क्या है कि such kind of E. coli which have the adhesion proteins on the surface of the villi, तो ये बैक्टीरिया जो है ये इंटेस्टाइन के सरफेस के साथ यहाँ पे बाइंड करते हैं, लाइक ये, ठीक है, यहाँ पे, और दे कॉज द वाटरी डायरिया. अगर ये इंटेस्टाइन के सरफेस के साथ अटैच ना कर सकें तो फिर E. coli जो हैं ये अदर इंटेस्टिनल फ्लूइड के साथ आगे मूव कर जाएंगे. तो इस केस में वाटरी डायरिया या इस तरह के इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ करते. बट whenever the E. coli has the pili and the adhesion protein that would be able to attach along the intestinal surfaces, and as a result of it a person can face the watery diarrhea conditions. ठीक है, तो this is like it. उसके बाद अगला यहाँ पे है द ट्विचिंग मोटिलिटी. दिस इज अलॉन्ग विद इट, और इसको हम जर्किंग मूवमेंट भी कहते हैं. हफ्सा ने भी क्वेश्चन किया था कि आई नीड टू एक्सप्लेन द जर्किंग मूवमेंट, तो अभी जर्किंग मूवमेंट एक्सप्लेन हो जाएंगी हफ्सा. ट्विचिंग मोटिलिटी, पिलाई जो है ये चूँकि मैंने बताया था अभी स्टार्ट में, दे प्ले डिफरेंट रोल एज कम्पेयर टू फ्लैजिला. बट स्टिल अगर हम देखें तो पिलाई भी समहाउ किसी ना किसी लेवल पे बैक्टीरिया को मूव करवा सकते हैं. चूँकि ये शॉर्ट होते हैं, ये ज़्यादा बैक्टीरिया को डिस्टेंट तक मूव नहीं करवा सकेंगे, डिस्टेंटली मूव नहीं करवा सकेंगे. दे वुड बी
involved in the jerking movements. For example, bacteria is there, it would take a jerk and that's it. और इसके अलावा कुछ ग्लाइडिंग टाइप मूवमेंट जिसमें हमें फील हो कि बैक्टीरिया जो है देर ग्लाइडिंग इन द लिक्विड मीडियम और इन द और ऑन द सॉलिड मीडियम के ऊपर अगर बैक्टीरिया या सेमी सॉलिड मीडियम पे है तो दिस पिलाई दैट विद इनेबल द बैक्टीरिया टू जर्क फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर पोजीशन एंड वेरी क्लोज पोजीशंस पे, बिल्कुल डिस्टेंट, जो जिस तरह फ्लैजेला केस में हमने देखा है वो कवर नहीं कर पाएगा पिलाई, और पिलाई दैट इज इन्वॉल्व इन द शार्क जर्किंग होता है कुछ झटका टाइप मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, एंड दिस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द ग्लाइडिंग मोटिलिटी टाइप्स ऑन द सॉलिड मीडिया, और इन सब को हम कहते हैं ट्विचिंग मूवमेंट्स ऑफ पिलाई, ठीक है. The next one that is here, the other role of the pili, that is the sex pilus. The pili हैं, they have ability to form a tube like structure. For example, अगर आप यहाँ पे देखें जो लेबल हुआ है इसको, this is a tube like structure that would able to transfer the genetic material from one bacteria to other. हो सकता है यहाँ पे दूसरा बैक्टीरिया मौजूद हो, तो this would be the pilus, sex pilus. इसके through bacteria that have ability to transfer the genetic material from here to here, और ख़ास तौर पे प्लाज्मिड जो है वो मूव करवाए जा सकते हैं from this to this, and this plasmid sharing and the genetic recombination, that is actually the reason to spread the antibiotic resistance, ठीक है, antibiotic resistance सेक्स पाइलस. तो दिस इज एन अदर रोल. इसके अलावा हमने पढ़ा वाटरी डायरिया के केस में इसका रोल पढ़ा, और इसके अलावा पिलाई जो है वो ट्विचिंग मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है, हमने ये पढ़ा. इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट यू मे आस्क. Okay. Up to this point we do not have any questions to ask, so we should move towards the next topic, that is about the internal structures. बैक्टीरियल सेल्स के बारे में जो हमने डिफरेंट अभी स्ट्रक्चर्स कवर किए हैं, ये सारे के सारे आउटर स्ट्रक्चर्स थे. फॉर एग्जांपल वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेलुलर मेम्ब्रेन, सेलुलर वॉल, फ्लैजेला, पिलाई, और सेलुलर वॉल के अंदर हमने बड़ी कंपोजिशन वेरिएशंस देखी हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की. एंड सो इन आउटर स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ हमने देखे हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स, दे वर सडनली एंड डेफिनेटली दे वर रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो. लेकिन कुछ हमने देखे हैं जैसे कि फ्लैजेला और पिलाई हैं, दे आर नॉट द नेसेसरी स्ट्रक्चर्स, दे आर देयर टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. अब कुछ हम पढ़ने लगे हैं, दे आर द इंटरनल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑफ द बैक्टीरिया, एंड दीज इंटरनल स्ट्रक्चर्स दे मे इंक्लूड द क्रोमोसोम, प्लाज्मिड्स, साइटोस्केलेटन, द स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम्स एंड एंडोस्पोर्स. इन जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं इनकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग सेल बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, और सेल बायोलॉजी में आप लोग प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ के आए होंगे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को. सो आई सपोज यू गाइस आर फेमिलियर विद दिस इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसा कि राइबोसोम्स का क्या रोल है, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स क्या हैं फॉर एग्जांपल, इसके अलावा राइबोसोम्स के साइजेस, राइबोसोम्स के तरह से मिशन प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं वगैरह वगैरह. तो एम आई राइट, यू आर फेमिलियर विद इट, all of these internal Yes, structures? sir. Yes, sir. I would not go in detail about these structures because that would be the repetition. You guys have discussed all of these structures in cell biology. तो मैं सिर्फ इसको अभी आपको गो थ्रू करने लगा हूँ ताकि एक अंदाज़ा हो जाए कि कुछ चीज़ें जो आपकी अगर मिसिंग हैं तो हम उसको देख लें. बड़ा ब्रीफली बात करेंगे. वैसे तो आई सपोज कि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें स्टेनिंग टेक्निक्स के बाद वाले पोर्शन शायद आप सेल बायोलॉजी में पढ़ के आए हों, लेकिन उसमें मुझे लगता था कि जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर या फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है ये शायद सेल बायोलॉजी में इतनी डिटेल के साथ ना पढ़ा गया हो, तो इसलिए मैंने उस पर थोड़ा रोशनी डाल दी है. एनीवेज, when we talk about the chromosome, that is the internal structure of the bacteria, and bacterial chromosome, as you are familiar with it, this is a prokaryotic cell, and that would not be encircled in a membrane. This would be an irregular mass that is spread into the cytoplasm. बैक्टीरियल सेल के मिडल में नॉर्मली हुआ करता है. फॉर एग्जांपल दिस इज बैक्टीरियल सेल और दरमियान में
यहाँ पे एक जेल लाइक पोर्शन बना हुआ होता है जिसको हम न्यूक्लियाइड रीजन कहते हैं, एंड दैट रीजन एक्चुअली कंटेनिंग द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो है बैक्टीरिया का, याद रखिएगा, ये सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक सिंगल ही क्रोमोसोम हुआ करता है। इसकी कॉपीज जिस तरह ह्यूमन में डिप्लॉयड एक्सेट्रा का केस है, या लार्जर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। टाइटली पैक्ड होता है और अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम ये बनाता है तकरीबन। फॉर एग्जांपल अगर सेल का वॉल्यूम हमारे पास कोई 10 सेल का वॉल्यूम अगर हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 10 क्यूबिक, my pencil is not writing here now, I don't know what happened to it, so I will write here. For example अगर सेल का वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो ये जो इसका 10% वो बनाया हुआ है इसने न्यूक्लियाइड ने, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ओनली। दिस इज सुपर coiled in nature and that is tightly packed। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, अगर आप स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो दिस इज एन इक्वलाइज सेल। ये हमारे पास सेल है और इस सेल के साइड पे काफ़ी सारे थ्रेड्स मौजूद हैं। तो दिस इज अ रप्चर्ड सेल दैट वी हैव रप्चर्ड बाय प्रोवाइडिंग सम रेजेंट्स। जैसे सेल रप्चर हो गया और सेल में से उसका साइटोप्लाज्म लीक कर गया। अगर आप सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड जो है जिसका क्रोमोसोम है, तो अगर आप देखें तो दिस क्रोमोसोम दैट इज वेरी ह्यूज in volume, so you can see that this huge chromosome that was tightly packed into a very small cell, and so this is the leaked chromosome that has been leaked through a ruptured cell। इसके साथ साथ ये एक सेल के अंदर हमारे पास जो रेड पोर्शन है, दिस रेड पोर्शन दैट इज एक्चुअली दिस इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। ये उसकी एक स्ट्रक्चर है एंड यू नो दैट ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स आती हैं, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए कलर इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द कलर इन्हेंस स्ट्रक्चर, और इसमें जो रेड पोर्शन है ये हमारे पास क्रोमोसोम्स को शो कर रहा है, न्यूक्लियाइड रीजन को शो कर रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर, दिस वन हियर। फिर उसके बाद प्लाज्मिड्स हैं, जो बैक्टीरियल डीएनए है दैट इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम एज वेल एज इन द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? दीज आर द सर्कुलर सुपर क्वाइल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसके साथ एक टर्म यहाँ पे और ऐड कर लें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। These are extra chromosomal, circular, double-stranded, supercoiled molecules of the DNA। और ये पूरे क्रोमोसोम का approximately 0.1% to 10% बनाते हैं, and they may be present from few to several hundred genes इस पे हो सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक क्रोमोसोम अगर एक मैं बनाऊँ प्लाज्मिड बनाने की कोशिश करूँ, तो इस प्लाज्मिड के ऊपर एक प्लाज्मिड के ऊपर सेवरल जीन्स से लेके 100 ऑफ जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्लाज्मिड के ऊपर हाउस कीपिंग जीन्स नहीं होती। हाउस कीपिंग जीन्स का मतलब है द जीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड के ऊपर हाउस कीपिंग जीन्स नहीं होती, एडवांटेजियस जीन्स होंगी जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को फैसिलिटेट करेंगी। जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है के लिए जीन्स चाहिए हैं वो सारी की सारी क्रोमोसोम पे होंगी। जो एडवांटेजियस जीन्स हैं जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सकते हैं, दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड। मिसाल के तौर पे द जीन्स विच आर फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये मौजूद हो सकती हैं प्लाज्मिड के ऊपर। ओके जी, अप टू दिस पॉइंट इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, एंड इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन टू ऐड यू कैन ऐड। नो, चलें आगे मूव करते हैं जी। दिस इज एक्चुअली अबाउट द राइबोसोम्स, एंड यू नो दैट बैक्टीरियल राइबोसोम दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स, और 70s स्वेडबर्ग यूनिट है। और राइबोसोम जो है दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड द राइबोसोमल आरएनए। हम इसके बारे में पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं, और राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं बैक्टीरिया के केस में। उसके बाद साइटोस्केलेटन की बात करते हैं अगर, तो बहुत सारी बैक्टीरियल प्रोटीन जो हैं दे हैव सिमिलैरिटी टू दोज ऑफ द यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन, और सेल डिविजन के अंदर इनका रोल है, प्रोटीन साइटोस्केलेटन बना रही हैं। यूकैरियोट्स की अगर अंदर हम बात करें, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो साइटोस्केलेटन कौन सी प्रोटीन्स बनाती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी? ट्यूबुलिन प्रोटीन। या ट्यूबुलिन प्रोटीन्स एंड सेम सिमिलर स्ट्रक्चर्स जो कि यूकैरियोट्स में तो प्रोटीन वो मौजूद नहीं है, बट स्टिल इसमें साइटोस्केलेटन के लिए कुछ प्रोटीन्स आर देयर
and I hope you have discussed in the cell biology and these proteins and this cytoskeleton that is responsible, that is involved in the cell division. और उसके बाद हमारे पास स्टोरेज ग्रेन्यूल्स आते हैं which are there to store different components and different nutrients into the cell. For example, हमारे पास कुछ storage compounds हैं जैसा कि excess glucose जो है that can be stored into the form of glycogen, और उसको store करने के लिए स्टोरेज का ग्रेन्यूल्स बनते हैं बॉडी के अंदर वेन एवर द बॉडी में सेल के अंदर वेन एवर द कंडीशन आर अनफेवरेबल, तो इस ग्लाइकोजन को यूज़ किया जाएगा टू कन्वर्ट बैक इनटू ग्लूकोज एंड इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा कुछ स्टोरेज ग्रेन्यूल्स बड़े ही कॉमन हैं, इसमें बड़ी एग्जांपल मशहूर और मरूफ एग्जांपल है पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट की. इसको हम PHB भी कहते हैं, और दिस इज़ द स्टोरेज ग्रेन्यूल जो नॉर्मली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है वेन एवर द ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द एक्सेस क्वांटिटी, एंड बैक्टीरिया इसको स्टोर कर लेते हैं. तो दिस ग्रेन्यूल, दिस कंपाउंड इज नॉर्मली यूज्ड टू प्रिपेयर द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. तो हम करते क्या है कि हम बैक्टीरिया को एक्सेस ग्लूकोज की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, और उसको ग्रो करने के बाद जो बैक्टीरिया एक्सेस ग्लूकोज की प्रेजेंस में ये PHB कंपाउंड बनाता है अपने सेल के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर ये बैक्टीरियल सेल था हियर, और बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे ना, और ये ग्रेन्यूल्स हैं ये PHB के होंगे. ये PHB जो है दिस इज एक्चुअली पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, और ये बनता कब है व्हेन एवर द बैक्टीरिया यूज्ड टू ग्रो इन हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन. तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके बाद बैक्टीरिया के सेल को रप्चर करते हैं. रप्चर करने के बाद हम बैक्टीरिया में से इन PHB ग्रेन्यूल्स को निकाल लेते हैं, और इसकी प्रोसेसिंग करके हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाते हैं. मेरा BS का और MS में मैंने रिसर्च की थी इस पर, एंड वी वर वेरी सक्सेसफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, और बड़ी उनकी कॉस्ट भी कम थी. हम ग्लूकोज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे वेस्ट, शुगर केन वेस्ट जिसको हम बगास कहते हैं, जो शुगर केन इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको इस्तेमाल कर रहे थे. इसके अलावा मेरे एक कोलीग ने काम किया था, वो यूज़ कर रहे थे फ्रूट पील्स को. बैक्टीरिया उस पर ग्रो होते थे, ग्रो करने के बाद बैक्टीरिया ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते थे. फिर हम इसकी प्रोसेसिंग करके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसकी मज़ीद प्रोसेसिंग करके इससे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बना देते थे. और ये काफ़ी सस्ते किस्म के प्लास्टिक्स हैं. हमने इस काम को काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट भी किया, लेकिन उसके बाद फिर मेरी PhD जब स्टार्ट हुई तो देन आई स्विच्ड माय वर्क, और फिर मैं ह्यूमन जेनेटिक्स पे आ गया. एनीवेज, दिस वाज अ पॉइंट टू शो यू एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसे आपको लगेगा ये हमारे काम की चीज़ें हो सकती हैं. इसके साथ साथ जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं इसमें वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स आ सकते हैं. दीज आर द ग्रेन्यूल्स विच आर देयर टू स्टोर द एक्सेस फॉस्फेट इनटू द बैक्टीरिया वोल्यूटिन, और दे कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोपी. और नॉर्मली जब हम मिथाइलिन ब्लू से स्टेनिंग करते हैं तो ये जो वोलेटिन ग्रेन्यूल्स हैं ये रेड कलर के शो होने लग जाते हैं, एंड वी कैन सी इट. और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एनर्जी स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं यूकैरियोट्स के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से ये फॉस्फेट्स वोलेटिन ग्रेन्यूल्स हैं. इनका ये बड़े यूज़फुल हैं वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में. फॉर एग्जांपल इफ़ द वाटर इज़ कंटामिनेटेड विद द फॉस्फोरस, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे जिनमें वोलेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं. तो वोलेटिन ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे कि एक्सेस फॉस्फोरस को स्केवेंज कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है. और जो वाटर बॉडी थी या वाटर था दैट वुड बी फ्री ऑफ फॉस्फेट, या उसके अंदर फॉस्फेट की कंसनट्रेशन रिड्यूस डाउन कर सकेगी हमारे पास. सो दीज वोलेटिन ग्रेन्यूल्स दे कैन बी यूज इन द फूड प्रोसेसिंग, and they may be beneficial for the human purpose. Okay, ji, up to this point, if you guys have any question, you may ask.